حضرت حفصہ بنت عمر، یہ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ہے۔ حضرت عمر کو اسلامی تاریخ کا اور سیرت رسول کا کون سا ایسا طالب علم ہے جو نہیں جانتا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت عمر فاروق کا۔ ان کے اسلام لانے سے، ان کے ایمان لانے سے اسلام کو ایک طاقت ملی، مسلمانوں کو ایک طاقت ملی، کھل کر کے اسلام کا اظہار کیا صحابہ کرام۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ حضرت حفصہ کی ماں کا نام تھا زینب بنت مظعون، یہ بہت مشہور صحابی تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون ان کی یہ بہن تھی، یعنی حضرت عمر فاروق کی جو اہلیہ تھیں، جو حضرت حفصہ کی ماں تھی، ان کا نام تھا زینب بنت مظعون۔ حضرت حفصہ کی پیدائش کب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے، جب نبی بنائے گئے، آپ کے بعثت کے 5 سال پہلے، جس سال خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے ہو رہی تھی اور مکہ کے کفار اپنی حلال کمائی سے چندہ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اسی سال حضرت حفصہ حضرت عمر کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ظاہر حضرت عمر فاروق کا جو گھر تھا، جو خاندان تھا، یہ اپنے آپ میں قبیلہ قریش کا بہت بڑا خاندان تھا۔ اس خاندان کو بنو عدی کہا جاتا ہے۔ قبیلہ قریش میں جو بڑے بڑے خاندان تھے، ان کے الگ الگ ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ تو حضرت عمر کا جو خاندان تھا، بنو عدی کا خاندان، اس خاندان کو یہ مقام حاصل تھا کہ یہ سفارت کا کام کرتے تھے۔ اگر قریش کے لوگوں کو کسی دوسرے علاقے میں اپنا سفیر بنا کر کے بھیجنا ہو تو بنو عدی سے، حضرت عمر کے خاندان سے سفیر جاتا تھا۔ یہ اس خاندان کی خاص بات تھی۔ تو حضرت حفصہ یعنی ایک بڑے خاندان میں، اور حضرت عمر فاروق کے گھر میں آپ پیدا ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے حضرت خنیس بن حذافہ سہمی سے۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ حضرت حفصہ کو لے کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی مدینہ ہجرت بھی کرتے ہیں، اور حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ اور غزوہ بدر سے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو اس وقت حضرت خنیس کا انتقال ہو گیا اور حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت حفصہ کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی۔ اب حضرت عمر کو اپنی اس جوان بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمجھدار انسان تھے، اور انہیں اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ ابھی میری بیٹی کی عمر 30 سال ہے، اسے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی بیاہ کا جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے اور جو نظام ہم اللہ کے رسول کی سیرت میں دیکھتے ہیں، جو صحابہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں، دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں 30 سال کی 35 سال کی عورتیں اگر بیوہ ہو جائیں تو لوگ ان کی شادی کرنے کو بہت اچھا نہیں سمجھتے۔ کتنی عورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بھائی اس نے اپنے بچے کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی۔ بکواس بات ہے، یہ بکواس بات ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ انسان کی فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایک مرد دوسری شادی کر لے، بہت بڑے عیب کی بات ہے بھائی، بہت بڑا گناہ ہے۔ جبکہ کتنی عورتیں سماج میں ایسی ہیں جو بغیر شوہر کی زندگی گزار رہی ہیں، مطلقہ عورت ہے، طلاق شدہ عورت ہے۔ ابھی ضروری تو نہیں کہ طلاق اگر ہوا ہے تو غلطی بیوی کی ہو، شوہر کی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسے بھی طلاق ہوتے ہیں کہ شوہر نشہ کر کے آیا، پی کر کے آیا، اس نے طلاق دے دی، مطلقہ عورت ہو گئی۔ اب بھائی وہ سماج میں اس کو کہتے داغدار ہو گئی۔ اب اس کی شادی کس سے ہوگی؟ اب یا تو اس کی شادی نہیں ہوگی، یا ہوگی تو اس سے ہوگی جو 50 سال میں 60 سال میں جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، اب اس بڈھے کے ساتھ اس 30 سال کی لڑکی کی شادی کیا ہے بھائی؟ یہاں ہم رسول کے صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، عدت گزرتی ہے اور فوراً نکاح کے پیغام، اور بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ، بڑے اونچے قسم کے لوگ بیوہ اور مطلقہ عورت سے شادی کرتے تھے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر ایک بھوک رکھی ہے کھانے اور پینے کی بھوک، اور ایک بھوک رکھی ہے ہمارے جسم کی خواہش کی بھوک، اور اللہ کی قسم کھانے اور پینے کی بھوک سے کہیں زیادہ خطرناک یہ جسم کی بھوک ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے سماج کہاں جا رہا ہے اور بدکاری کے کون سے چور دروازے کھل رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ
उन घरों में जहां गार्जियन सख्त हैं, माँ बाप सख्त हैं, दीनदार हैं, उन घरों की बात मैं कर रहा हूं। 13-13 साल की बच्चियां, 14-14 साल की बच्चियां, उनके बॉयफ्रेंड हैं, उनके लड़कों से दोस्तियां हैं, वो लड़कों से मिलने जाती हैं, अपनी मां की आंखों में धूल झोंक कर, अपने बाप की आंखों में धूल झोंक कर। भाई माँ बाप बहुत सख्त हैं, मगर कितनी नजर रखें, कितनी निगरानी रखेंगे। बच्ची घर से कह के कि मैं स्कूल जा रही हूं, स्कूल नहीं गई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी रही है। अल्लाह अकबर। 13 साल की मासूम बच्ची, 14 साल की मासूम बच्ची, जो अभी बुलूगत मुकम्मल तरीके से बालिग नहीं है। मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये इसी समाज की हकीकत है मेरे भाई। और जिन घरों में वालिदैन ने छूट दे दी है कि लड़की जहां चाहे जा सकती है, वहां तो अल्लाह ही मालिक है। भाइयों, हमें और आपको अपने शादी ब्याह के निजाम पे गौर करना पड़ेगा। लड़के और लड़कियों की शादियों को ये तरखाना बंद करो, रिश्ते लगा के 3-3 साल बाद शादी करो, गलत है ये। निकाह कर देते हैं, बाद में रुखसती। क्यों भाई, क्यों करेंगे आप रुखसती बाद में? यानी आप अपने लड़के और लड़की को इस बात पर आमादा कर रहे हैं, भाई हमने तेरा निकाह कर दिया, तू मिल सकता है, तू इधर उधर जा सकता है, जब हमें वुसअत होगी हम रुखसती करेंगे। भाई अपनी वुसअत के दायरे थोड़े तंग कर दो। रसूल की शादी हो रही है, रसूल की 11 बीवियां हैं, कहीं कोई बारात का चक्कर हमें नजर नहीं आ रहा है। कहीं वलीमा हुआ भी, कहीं वलीमा नहीं भी हुआ। वलीमा भी कोई जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है, इस्तिताअत के ऊपर है। 100 लोगों की ताकत है, 100 लोगों को खिलाओ भाई। लॉकडाउन है, कारोबार बंद है, नहीं साहब हमारी नाक कट जाएगी। बड़े लड़के की शादी हमने की थी, 500 लोगों की दावत दी थी, छोटे लड़के की शादी में भी 500 लोगों की दावत होनी चाहिए। बड़े लड़के की शादी थी, हमने डाल में 16 जोड़े कपड़े भेजे थे, 20 जोड़े कपड़े भेजे थे। दूसरे लड़के की शादी में भी हम 20 जोड़े कपड़े। क्यों भाई? ये रस्में, ये रिवाज, ये हमारे समाज को कितना खोखला कर रहा है और बदकारी के किस गड्ढे तक लेके जा रहे हैं, हमें और आपको इसका अंदाजा नहीं। हजरत उमर की बेटी बेवा हुई है। सही बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। हजरत उमर खुद कहते हैं, ये 4005 नंबर की हदीस है सही बुखारी की। कहते मेरी बेटी बेवा हो गई, मुझे फिक्र लायक हो गई। कहते मैं उस्मान के पास गया। इत्तेफाक से जब हजरत हफ्सा बेवा हुई थी, उसी वक्त हजरत उस्मान गनी की बीवी जो थी, अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला, उनका भी इंतकाल हुआ था। हजरत उमर ने साफ जाकर के उस्मान से कहा, उस्मान गनी मैं अपनी बेटी हफ्सा की शादी आपसे करना चाहता हूं। हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं सोच के बताता हूं। 2-3 दिन के बाद हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरा अभी इरादा नहीं है शादी करने का। हजरत उमर को थोड़ी सी तकलीफ पहुंची, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया जाएगा। अच्छा, बाप खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेके जा रहा है, इस पर भी जरा गौर करने के बाद हमारे यहाँ बड़े ऐब की बात मानी जाएगी। फिर उसके बाद हजरत उमर कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक के पास गया, दोनों में दोस्ती थी। अबू बकर सिद्दीक को मैंने ये रिश्ता पेश किया कि भी आप मेरी बेटी से निकाह कर लें, हमारी दोस्ती जो है वो ससुर और दामादी के रिश्ते में बदल जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हजरत उमर कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं उसी तकलीफ के आलम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। रसूल अकरम के सामने मैं पूरा मैंने मामला सुना दिया कि मैंने उस्मान को भी रिश्ता पेश किया, अबू बकर सिद्दीक को भी रिश्ता पेश किया, मुझे अपनी बेटी हफ्सा की फिक्र है, लेकिन इन दोनों हजरात ने मेरे इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ उमर यतज़व्वजु हफ्सता मन हुवा खैरुम मिन उस्मान, हफ्सा से निकाह ऐसा इंसान करेगा जो उस्मान से बेहतर है, और उस्मान ऐसी औरत से निकाह करेंगे जो हफ्सा से बेहतर है। तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे इंसान से होने वाली है जो उस्मान से बेहतर है, और उस्मान ऐसी औरत से शादी करने वाले जो हफ्सा से बेहतर है। हजरत उमर फारूक समझ गए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा यह है कि मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन के दर्जे पर फायज होने वाली है। हजरत उमर फारूक वापस आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह खुशखबरी सुनाई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेवा बेटी को अपने निकाह में लेना चाहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा दरअसल जब आपकी बेटी हफ्सा बेवा हुई थी, उसी वक्त अल्लाह के रसूल के दिल में यह ख्याल आया था और अल्लाह के रसूल ने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल के राज को खोलना नहीं चाहता था। मेरा यह इरादा था अगर अल्लाह के रसूल इनकार कर देंगे या आपका इरादा बदल जाएगा, तब मैं आप जो रिश्ता पेश कर रहे थे मैं कबूल कर लेता। यानी आप गौर करें कि रिश्तों को लेकर के सहाबा की सोच क्या थी। पहली बात तो ये कि उम्र का डिफरेंस उनके यहां बहुत अहमियत नहीं रखता था।
लड़की की उम्र कम है, लड़के की ज्यादा है, चलता था। लड़की की ज्यादा है, लड़के की कम है, चलता था। और दूसरी बात यह कि भाई हमारे यहाँ एक दोस्त अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त से करने के लिए आमतौर से तैयार नहीं होता है, लेकिन यहाँ उस सोसाइटी में इसको ऐब नहीं माना जाता था अगर रिश्ता अच्छा है, दीनदार है। और जाहिर है कि अल्लाह के रसूल के निकाह में ऑलरेडी हजरत आयशा हैं, हजरत सौदा हैं, ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक तैयार हुए और ये निकाह हुआ और बड़ी ही सादगी के साथ निकाह हुआ और 400 दिरहम इस निकाह का महर तय हुआ और शाबान सन 3 हिजरी में ये निकाह हुआ। निकाह के बाद अब जाहिर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियां ऑलरेडी हैं, हजरत आयशा हैं, हजरत सौदा हैं। अब एक तीसरा हुजरा, एक तीसरा कमरा, और जाहिर है नबी का कमरा कैसा था, वहां कोई टाइल्स थोड़ी बिछे थे, वहां कोई बेहतरीन पीओपी और झाड़ और फानूस थोड़ी लगे थे। कच्चा मकान है और खजूरों के तनों का पिलर है और एक मामूली सा दरवाजा है और उस पर टाट का पर्दा है और अल्लाह के रसूल एक मामूली से टाट पर लेटते हैं। ये रसूल का कमरा है, ये रसूल की जिंदगी है। कोई ऐसा नहीं है हजरत उमर की बेटी यहां आके राज करेगी। उनको भी पता है रसूल अकरम की जिंदगी कैसी गुजरती है, मगर वहां दुनिया से ज्यादा दीन पर नजर थी। आज हमारी नजर दीन पर नहीं है मेरे भाई। रिश्तों नातों में हमारी नजरें दीन पर नहीं, हमारी नजरें खूबसूरती पर हैं, हमारी नजरें लड़के लड़कियों के मकान पर हैं, उनके कारोबार पर हैं। हजरत हफ्सा अल्लाह के रसूल के घर में आती है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बीवी की तालीम और तरबियत का कैसे ख्याल रखते हैं। एक सहाबी आती है हजरत शिफा बिनत अब्दुल्ला, उनको लिखना आता था। अल्लाह के रसूल ने उनको मुतय्यन किया कि आप मेरी बीवी हफ्सा को लिखना सिखाइए। हजरत हफ्सा ने हजरत शिफा के जरिए लिखना सीखा। उन्होंने लिखना भी सिखाया और कोई जहरीला जानवर अगर डंक मार ले, काट ले, तो उस डंक के ऊपर कौन सी दुआ पढ़ के दम किया जाए, वो दुआ और इलाज का तरीका भी सिखाया हजरत शिफा बिनत अब्दुल्ला ने। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना रसूल अकरम की हदीसों को सुनती थी और कहीं पर अगर कोई सवाल होता था, कोई डाउट होता था, कोई मुश्किल होती थी, तो अल्लाह के रसूल से क्लियर भी करती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की 2496 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम में ऐसा कोई आदमी इंशाअल्लाह दाखिल नहीं होगा जिसने पेड़ के नीचे मेरे हाथ पे बैत की है, जिसको बैत रिजवान कहा जाता है सुलह हुदैबिया के मौके पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पेड़ के नीचे 1400 सहाबा ने मेरे हाथ पर बैत की थी, उसमें से कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। अब हजरत हफ्सा का दिमाग देखिए। हजरत हफ्सा ने कहा, अल्लाह के रसूल एक सवाल है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह मरियम में, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर इंसान को जहन्नम के ऊपर से गुजरना है, पुल सिरात के ऊपर से हर इंसान को गुजरना है। और आप कह रहे हैं कि जहन्नम में कोई नहीं जाएगा असहाब बैतुर रिजवान में से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हफ्सा जरा आगे की आयत भी तो पढ़ लो। अल्लाह ने कहा कि जहन्नम के ऊपर से सबको गुजरना है, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, लेकिन हम मुत्तकी लोगों को बचा लेंगे। जाहिर है कि ये मेरे जो सहाबा हैं ये मुत्तकी हैं, ये पुल सिरात से फिसलेंगे नहीं, पुल सिरात से गिरेंगे नहीं, ये पुल सिरात को आसानी से पार कर लेंगे। तो मेरे भाइयों, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना अल्लाह के रसूल से सवाल करती थी, जहां मुश्किल आती थी पूछती थी, अल्लाह के रसूल उनके सवालों का जवाब देते थे। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल के ऊपर जो कुरान नाजिल होता था, तो कुरान कोई ऐसा तो नहीं कि इकट्ठे उतरा है, कुरान थोड़ा 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 करके उतरता था। और जब कुरान उतरता था तो अल्लाह के रसूल के सहाबा उसको सुन करके याद करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल एक बात का और ख्याल करते थे कि कुरान को लिखवाते भी थे और बताते थे कि ये आयत सूरह निसा में रखी जाए, ये आयत सूरह आल इमरान में रखी जाए, ये आयत सूरह बकरा में रखी जाए, यानी उन आयतों को कुरान में कहां रखना है ये भी अल्लाह के रसूल बताते थे। तो कुरान को लिखने वाले जो चुनिंदा सहाबा और सहाबियात थे, उसमें से एक नाम हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा का भी था, क्योंकि इनको लिखना आता था। अल्लाह के रसूल ने अपनी इस बीवी को लिखना सिखाया था, तो इसका फायदा उठाते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा से कुरान की वो आयतें लिखवाते थे। अब धीरे धीरे कुरान की बहुत सारी आयतों का एक कलेक्शन हजरत हफ्सा के पास तैयार हो गया। एक इंसान
दुनिया में सबका प्यारा है, उसके बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बीवी उसको बहुत चाहती है, उसके मोहल्ले वाले, उसके गांव वाले उसकी बड़ी कदर करते हैं। मगर जिस दिन उस इंसान की मौत आती है, जिस दिन वो मरता है, उससे इतनी मोहब्बत होने के बावजूद उसकी लाश को